नमस्कार, स्वागत है आपका 100 न्यूज़ में। मैं तुलिका पांडे। इस वक्त हम इंडियन पुलिस फोर्स के प्रमोशन में मौजूद हैं और यहाँ पर आज शिल्पा शेट्टी कुंद्रा, विवेक ओबरॉय और सिद्धार्थ मल्होत्रा आने वाले हैं और बताने वाले हैं अपने सीरीज़ के बारे में। थोड़ा सा मैं आपको बता दूं कि ये सीरीज़ दरअसल पुलिस ऑफिसर और उनके ब्रेवरी के बारे में है। तो आइए चलिए कॉन्फ्रेंस में चलते हैं और देखते हैं कि उन्होंने क्या कुछ कहा है इस फिल्म को लेकर। और प्लीज इस कॉरिडोर को खाली कर दें, प्लीज। आप सभी को फोटो के लिए पर्याप्त समय मिलेगा। आप सभी से अनुरोध है, कृपया अपना निर्धारित कार्यक्रम का आगाज कर सके। Once again, a very good evening and a warm welcome to all of you. My humble request to everyone to please settle down, take your seats so that we can begin the proceedings. Thank you. Siddharth Malhotra, Shilpa Shetty Kundra and Vivek Oberoi, all of you to please join us on stage. I would like to give a special mention, the place that we are here, this memorial that we witness right now, is for 35,000 police officers who sacrificed their life on duty for our country. So a huge round of applause for them, and let's salute them, remember them and thank them for their service. And with that, Ritu ma'am, Sanjay sir, Rohit sir, Aparna, Sushant, may I request to please do the honors by lighting the lamp as in tradition. Please, may I request to please step forward. Thank you. Well, thank you for that. Whoever did that, that single individual, I need all of you to put your hands together. ये हमारे देश की प्रथा है कि दिया जलाते हैं किसी भी कार्यक्रम की शुरुआत करने के पहले, और उसकी एक वजह है, इससे सही ऊर्जा और सही एनर्जी हम कहते हैं कि माहौल में पैदा होता है। I think a huge round of applause. And thank you so much to all the dignitaries. Thank you so much for doing the honors. Sushant, may I request to please stay back, and others, may I request to please take your seats. Thank you so much. Keeping that tradition alive, we continue with the proceedings, and I would like to invite on stage once again, Sushant Sriram, Country Director, Prime Video India, to please address the audience. Yeah, you can cheer. Thank you. Namaste. Good evening, everyone, and a very warm welcome to Srimati Ritu Arora ji, President Police Family Welfare Society of Delhi. Thank you so much for joining us. Shri Sanjay Arora ji, IPS, Commissioner of Police Delhi. Thank you so much for gracing us on this occasion. Respected personnel of the Indian Police Service and their families, and our friends from the press. It is a pleasure to stand before all of you on this very special occasion, and in our own small way, pay our deepest respects and express heartfelt gratitude to the undying courage and bravery of the Indian Police Force, and to do so through the power of storytelling. We as a nation are a land of storytellers. Our stories offer a window into our cultures, traditions, ideologies, and so much more. Indian storytelling is truly vibrant and expansive. And with the advent of streaming services like Prime Video, entertainment has also become a unifying force, bringing together different regions and cultures through the power of storytelling. At the same time, I truly, sincerely believe that entertainment also has the power to bring under the spotlight
people, institutions, and sections of society that have contributed to building this great nation of ours. And the Indian Police Service is one such institution. The multifaceted functions, duties, roles, and responsibilities entrusted to each member of the police force are vast, diverse, and even dangerous. However, they're all focused towards one common goal: to keep us Indian citizens safe and secure. They're not just the guardians of our cities and our towns, but their valor, heroism, and sacrifice, in fact, is a part of our daily lives. It is a constant that we can sometimes not take a moment to thank or acknowledge. And the Indian Police Force is one small attempt by us to do so. As the nation marks 75 years of courageous contributions by the Indian Police Service, we are proud to bring the Amazon Original Series Indian Police Force to viewers both in India and in more than 240 countries and territories across the world. This gripping action thriller by Rohit Shetty and team is our way of honoring the unsung numerous heroes of the police force whose selfless acts ensure our safety and security every single day. The series is our way of saluting the countless men and women who, with unwavering courage, step out of their homes every day with nerves of steel and only one thought on their minds, which is to do whatever it takes to fulfill their duty of fighting crime and injustice and making our country safe for one and for all. I feel truly blessed and humbled to be in the presence of such exemplary members of the police force today, and I'm filled with gratitude for your endless dedication and devotion to our nation. Thank you very much. A round of applause. Let's welcome on stage none other than Rohit Shetty. And a warm welcome is much needed because of the weather here. So Rohit sir, the mic is all yours. Good evening and thank you so much. I feel honored कि मैं यहाँ हूँ आप सभी के साथ. ये हमारे सब रियल हीरोज़ हैं, सारे ऑफिसर्स जो प्ले कर रहे हैं, बट आप सभी जो हैं वो रियल हीरोज़ हैं. और सिर्फ आप ही नहीं, मैंने मुंबई पुलिस के साथ बहुत ज़्यादा काम किया है, फिल्म्स रिलेटेड और वैसे भी. सो मैं जानता हूँ कि परिवार पे क्या गुजरती है. तो सिर्फ एक ऑफिसर ही ड्यूटी पर नहीं रहता है, जब तक वो रिटायर नहीं होता उसकी फैमिली भी ड्यूटी पर रहती है, और वो बलिदान कितना देती हैं वो कभी हाईलाइट नहीं होता, और ये बात मैं अच्छी तरह से जानता हूँ. सो आई थिंक आप सभी को सल्यूट, all the wives of officers sitting here and family, you guys, you all are the real heroes actually. You know, आप लोग एक हेडक्वार्टर्स तो होता है, आप दूसरा हेडक्वार्टर्स घर पर होता है. एंड जिस तरह से आप ऑफिसर्स को हमारे संभालते हैं, प्रोत्साहित करते हैं, यू नो, एंड इट्स नॉट ईजी. मैं जानता हूँ कि कई बार ऐसा भी होता है कि 48 घंटे काम पर रहना पड़ता है, ड्यूटी पर, कई बार उससे ज़्यादा. अब हम यहाँ खड़े हैं और करीबन 35,000 से ज़्यादा ऑफिसर्स ने अपना बलिदान दिया है. सो सिर्फ 35,000 ऑफिसर्स ही नहीं, उनकी फैमिली ने भी बलिदान दिया है. और ये कई बार हम यंगस्टर्स को, हमारे यंगस्टर्स भूल जाते हैं इस बलिदान को. और इस तरह की जो मॉन्यूमेंट हमारा है, इसे हाईलाइट करना बहुत ज़रूरी है ताकि वो बलिदान हमारी आने वाली जनरेशन को याद रहे और उसकी वैल्यू करे, हमारे हीरोज़ की वैल्यू करे. सो थैंक यू सो मच हमें यहाँ इनवाइट करने के लिए, एंड आई रियली फील तहे दिल से ऑनर्ड दैट आई एम हियर टुडे विद माय टीम. थैंक यू. A few words from Shilpa and the rest of the cast, please. Thank you. A very good evening to everyone present here. Sanjay Arora ji, Ritu Arora ji, and to the entire force and their families. वैसे तो बहुत सारे किरदार प्ले किए हैं मैंने, लेकिन मैं आज बहुत गौरवान्वित महसूस कर रही हूँ अपने आप को इस किरदार को प्ले करते हुए.
कैरेक्टर्स को प्ले करना एक चीज़ होता है और रियल लाइफ हीरोज़ को पोर्ट्रे करना एक अलग ही गेम होता है, और उस गेम के मास्टर है रोहित जी। मुझे बहुत खुशी है कि ये एक ओड है इंडियन पुलिस फोर्स को, और इसका एक छोटा सा हिस्सा मैं भी हूँ। आप सभी को, इंडियन पुलिस फोर्स को, दिल्ली पुलिस फोर्स को मेरा साष्टांग दंडवत प्रणाम। थैंक यू सो वेरी मच फॉर होस्टिंग अस हियर। Jai Hind, everybody. Good evening. It's been an absolute honor to wear the uniform. Indian Police Service, सबसे इम्पोर्टेंट शब्द इसमें है सर्विस। ये वाकई में एक सेवा है देश के लिए ग्रास रूट लेवल पर। मुझे कमिश्नर साहब संजय जी याद दिला रहे थे कि 20 साल पहले जब सुनामी दक्षिण भारत में हुई तो मैं वहाँ पे ग्राउंड ज़ीरो पर काम कर रहा था, वॉलंटियर्स के साथ में नव निर्माण करने की कोशिश कर रहा था, रिहैबिलिटेशन का काम कर रहा था वहाँ पर। और संजय जी वहाँ तब ग्राउंड पर इन द मिडल ऑफ ऑल दैट मेहम एंड मैडनेस आप लोग वहाँ थे, इसलिए हम अपना काम कर पाए। विदाउट आवर हीरोज इन यूनिफॉर्म कोई भी सिस्टम चलाना, देश चलाना, संयम बरतना इम्पॉसिबल है। And like Rohit bhai, actually I should call him Dr. Rohit Shetty because he's a PhD in police. I'm quite sure कि अगर आपकी कभी डिबेट हो इनके साथ में तो he may end up knowing more than some departmental people also about your department. तो जैसे डॉक्टर रोहित शेट्टी ने इतना बढ़िया काम किया है, इतने लोगों को इतना इंस्पायर किया है। हम जब बड़े होते थे तो या तो पुलिस लेट आती थी हमेशा फिल्मों में या करप्ट होते थे, लेकिन थैंक्स टू रोहित शेट्टी दैट जो आप लोग हैं, पीपल दैट मेक अस फिल्ड विद प्राइड विद योर सर्विस, विद योर सैक्रिफाइस, उनको उन्होंने सिनेमा पे दर्शाया है एंड आने वाले कई जनरेशन्स को इंस्पायर किया है। आई एम सो हम्बल्ड टू बी अ स्मॉल पार्ट ऑफ हिज ग्रेट कॉप यूनिवर्स, इंडियन पुलिस फोर्स। जय हिंद। Good evening, everyone. Well, and namaste to Delhi, being a fellow Delhi boy, and excited and happy to be back home, and also feel extremely proud and happy that a memorial like this has been built. I think जब आप काफ़ी unaware होते हो when you're in college or otherwise कि जब आप उनको देखते हैं अपनी ड्यूटी करते हुए, आप उनसे इंटरेक्ट करते हैं, कभी आपको लगता है कि अरे काश मैं उनसे और बात करता या उनसे मदद मांगता या कोई। आप हमेशा एज अ सिटीज़न आप चाहते हैं कि आपकी गवर्नमेंट, आपके ऑफिसर्स आपको और सर्विस दें। पर आई थिंक अब जब मैं एक मुकाम पे, एक एज पे पहुंचा हूँ, जब मेरे को अवेयरनेस मिली है, आई थिंक द पुलिस सर्विस इज़ वन ऑफ द टफेस्ट जॉब्स इन द कंट्री, बिकॉज आप हर लेवल पर कॉन्स्टेंटली एक सिटीज़न से इंटरैक्ट कर रहे हैं। उसी सोसाइटी में आपको उनका ध्यान भी रखना है, उनसे बातचीत करना, हर कॉलोनी, हर एरिया, हर एज ग्रुप से अलग तरीके से बात करना। आई थिंक दे आर ब्रिलियंट। आई थिंक दे आर ऑल्सो ब्रिलियंट एट पीपल डीलिंग। लोग समझते हैं कि हमारा काम मुश्किल है यहाँ पे सबको एड्रेस करना। आई थिंक जो हमारे सारे पुलिस ऑफिसर्स यहाँ पे हैं वो कितनी तहजीब से, इतने अपने पेशेंस से, अपने इमोशंस को कंट्रोल करते हुए लोगों से डील करते हैं, हमेशा काम करते हैं, हमें प्रोटेक्ट करते हैं। एंड एज एन एक्टर आई फील एक्सट्रीमली ऑनर्ड कि मुझे एक ऐसे वर्दी बड़े पर्दे में पहनने का मौका मिला। जैसा कि सर कहते हैं कि हम तो रील के हीरोज़ हैं, आप हमारे असली हीरोज़ हैं। तो मैं बहुत ही एक्साइटेड हूँ ये शो लेकर, और आज मैं अपने ही होम टाउन में इस अमेजिंग लोकेशन में आपके साथ हूँ। सो आई वुड लाइक टू टेक दिस अपॉर्चुनिटी टू से थैंक यू, all the respect and love to all the officers here, and hope you guys enjoy the show. Shilpa has just given me this note that's been written by one of the brightest, best writers in India, Manoj Muntashir. क्योंकि हम इस मंच पर हैं जहाँ पे
अल्टीमेट सैक्रिफाइस, समर्पण का ये जो चिन्ह है, उसके सामने ये 4 शब्द मैं आप लोगों को, हमारे वर्दी वाले हीरोज को समर्पित करता हूं। हाथों में तिरंगा लहराए, माथे पर वतन की खाक लगे, 100 जख्म लगे सीने पे तो क्या, वर्दी पर कभी दाग ना लगे। शाबाश, और आपने दिल जीत लिया। बहुत बहुत शुक्रिया, एंड थैंक यू शिल्पा फॉर ब्रिंगिंग दैट हियर, एंड थैंक यू सो मच। And he did do justice to that, so thank you Vivek, and thank you to all of you. Shivering in Korea, you know, we are Mumbai. Welcome back Siddharth, welcome back home. See, we are Mumbaikars. 20 डिग्री होते नहीं है कि हमारे जैकेट्स बाहर आ जाते हैं, हम लोग वैसे घूमते हैं बम्बई में। It's a fact. So for us to come here and इस मौसम में double thermal, double jackets, all of that, try to do my level best. It's called survival of the fittest, so I'm trying to do that. But thank you so much. And इसी के साथ रोहित साहब, आपकी इजाजत हो तो रियल लाइफ हीरोज को मंच पे बुलाया जाए। Yeah, I'll give the mic to you and कुछ रियल लाइफ हीरोज का मंच पर बुलाना चाहेंगे, एंड ऑल्सो रियल लाइफ हीरोज के सपोर्टर्स जो एक्चुअली घर संभालते हैं। तो जैसे मैं आपका नाम लेता हूं, मैं दरख्वास्त करता हूं आप मंच पर हमारे साथ जुड़िए। प्लीज वेलकम इंस्पेक्टर संजय पंगल, मैराथन रनर। यू सी हिम, इज 53 years old and you can see the fitness. May I request to please join us on stage. Also, let's welcome SI Preeti Sangwan from Special Cell. Preeti Sangwan, request to please join us on stage. Also welcome ASI Kapoor Singh. अब जोरदार तालियां होनी चाहिए because we are calling the family members. स्वागत कीजिए श्रीमती नीरज, wife of Inspector Sonu, and Shrimati Manpreet Kaur, wife of ASI Paramjeet Singh, to please join us on stage. ये उठा के नीचे रख दो, ये उठा के नीचे रख दो, पकड़, मैं पकड़ के रखा हूँ, उठा के नीचे रख दो। ये संजय जी, हाँ जी, We can get the music a little down. आप मैराथन रनर हैं? Yes sir, I am running since 2230 days non-stop. छह साल में सर। शिल्पा जी पूछ रही किससे भाग रहे हैं आप? नहीं मैडम, तो ये से भाग नहीं सकता मैं। अच्छा, ये बात बताइए, मैं जानता हूँ कि ड्यूटी आवर्स जैसे बाकी ऑफिसेज में होते हैं या बाकी जॉब्स में होते हैं वैसा तो होता नहीं है पुलिस फोर्स में, तो आप वक्त कैसे निकालते हैं फिटनेस के लिए? सर, किसी भी प्रोफेशन में कोई आदमी, सबके पास केवल 24 घंटे होते हैं, काम के लिए भी और अपने सेहत के लिए भी। अगर आपने सेहत अपनी ठीक करने का डिसीजन ले लिया है तो आपकी डेडिकेशन और डिटर्मिनेशन दोनों है। 1 घंटा आप किसी भी समय निकाल सकते हैं। मैं समझता हूँ, आपको पता होगा, पुलिस फोर्स में कई बार 18-18 घंटे ड्यूटी होती है हमारी, लेकिन या तो पहले, जैसे कई बार नाइट ड्यूटी होती है तो नाइट ड्यूटी बार आफ्टरनून में कर लो, अगर नहीं है तो सुबह का टाइम 5 से 8 एक ऐसा होता है जिसका और कोई चारपाई तोड़ने के अलावा उपयोग नहीं है। अगर थोड़ा अलग सुनाई दे रहा है।
अगर इसका उपयोग किया जा सकता है, इससे बेटर अगर आप फिजिकल एक्सरसाइज करते हैं तो उससे बेटर इसका कोई यूज नहीं है। इस टाइम हमारा जैसे कोर्ट वगैरह भी नहीं होती है, हर आदमी के लिए ही इसका कोई बेटर उपयोग नहीं हो सकता। आप सुबह 5 बजे उठ के अगर आप 1 घंटा अपने शरीर को देंगे तो आपको कभी डॉक्टर की या दवाई की जरूरत नहीं पड़ेगी। क्या बात। संजय जी, आप सोशल मीडिया पे हैं? जी सर। तो आप इस चीज को प्रमोट क्यों नहीं करते? मैं करता हूं सर, मैंने 2 क्लब बनाए हुए हैं। एक द्वारका एक्सप्रेस रनर्स में 1000 एक्टिव रनर्स हैं और एक दिल्ली पुलिस रनिंग क्लब है जिसमें मोर देन 500 हमारे पुलिस फोर्स के बंदे एक्टिव हैं और रनिंग करते हैं। ओके, क्या बात है। प्रीति सांगवान जी, आप स्पेशल सेल में? यस सर। ये भी स्पेशल सेल में ही है? यस हमारे सर, अभी मैंने जस्ट ट्रेलर देखा और इससे पहले सोशल मीडिया पर भी फोटोज और कुछ वीडियोस देखे हैं मैंने। जी, तो ये आप बताइए मुझे एक बात के प्रोफेशनल लाइफ और पर्सनल लाइफ कैसे मैनेज करते हैं आप? सर देखिए, वही जैसा अभी सर ने बताया 24 आवर्स हैं हर किसी के पास और हमारी ड्यूटी 24/7 × 365। वी आर ऑलवेज ऑन ड्यूटी and nobody can understand it better than our families because friends might be sometime with us, sometime in contact, sometime out of contact. So when we are at home, then we are at home, but when we are at duty, so like just avoiding gossip times or maybe like when whatever we do, we just do that. So उसी में जब हम ऑफिस में हैं तो ऑफिस का काम ही करना होता है। जैसा अभी आपने दिखाया कि one time in Mumbai, then in Jaipur, and then in some other city. So similarly in special cell, like sometime raid, sometime office, sometime court, तो वो सब मैनेज करते हुए जब ऑफिस में है तो ऑफिस काम को ख़त्म करके और घर जब जाते हैं तो अपना सोशल मीडिया टाइम या जो अपना सेल्फ का टाइम है उसको कम करके फैमिली को डिवोट करते हैं। सो दैट्स हाउ वी मैनेज इट। नॉट येट मैम, नॉट येट। अच्छा, ये एक और सवाल। Yes, sir, आपने पुलिस फोर्स ही ज्वाइन करने का क्यों सोचा? इंस्पिरेशन क्या थी? Sir, I would like to mention earlier to this job I was serving in Andhra Bank and for 2 years I served in bank happily. But since my 7th class, Kiran Bedi has been my role model. So no wonder I'm here. कपूर सिंह जी, आप एक ऐसे ऑफिसर हैं जिनको 2 आउट ऑफ टर्न प्रमोशंस मिले हैं। यस सर। उसकी वजह आप खुद ही बताएंगे तो बेहतर रहेगा, इससे कि मैं बताऊं आप बताएं तो नहीं सर, बिल्कुल सर। हाँ सर, 2011 के अंदर सर मैंने स्पेशल सेल ज्वाइन करा था। तो उसके अंदर सर हम कई रेडों में रहे सर, जैसे इंडियन मुजाहिदीन के कई आतंकवादी पकड़े, ISIS के कई आतंकवादी पकड़े सर, उसके अंदर कई इनकाउंटर्स करे सर। तो उसके अंदर सर मेरे को 2016 के अंदर एक कोवर्ट ऑपरेशन के अंदर एक मेरे को आउट ऑफ 10 प्रमोशन मिला था। उसके बाद सर 2020 के अंदर एक वजीराबाद के अंदर केरल के टेररिस्ट थे, तो उनके साथ हमारा एक्सचेंज ऑफ फायर हुआ था, तो इनकाउंटर हुआ था, तो उसके अंदर दूसरा आउट ऑफ 10 प्रमोशन मिला था सर मुझे। जब मैं समझ सकता हूँ, लेकिन जो लोग देख रहे हैं, जो मीडिया भी देखेगी अभी और बच्चे देखेंगे और बाहर और भी लोग जो हमारे सिविलियंस हैं जो देखेंगे इस चीज़ को, जब अटैक होता है उस वक्त दिमाग में क्या चलता है, दिल में क्या चलता है आपके? सर जब अटैक होता है तो अपने आप को न्यूट्रल रखना पड़ता है, किसी फैमिली के बारे में नहीं सोचना होता, कुछ नहीं सोचना होता, देश हित सर्वोपरि है सर। उस वक्त हम ये सोचते हैं कि केवल देश के लिए मैं जो करना है करना है। फैमिलीज होती हैं सर, थोड़ा फैमिलीज़ को प्रॉब्लम होती है, पर धीरे धीरे फैमिलीज़ हमारे साथ रम जाती हैं सर। वो कहती है कि चलो ठीक है, कर रहे हैं, जॉब कर रहे हैं, उनको समझाना पड़ता है कि देश हित में काम कर रहे हैं, तो सर फिर धीरे धीरे वो भी हमारी तरह ही बन जाते हैं, उसी तरह एडजस्ट करते हैं सर। क्या बात है। श्रीमती नीरज जी, आप हाउस वाइफ हैं, आपके पति जो है वो जी ऑफिसर हैं, तो आप कैसे मैनेज कर लेती हैं? जैसे कि हम सब जानते हैं कि वक्त नहीं दे पाते हैं बिकॉज देश पहले ड्यूटी पहले, तो
तो कैसे मैनेज कर लेती हैं आप? एक्चुअली सर मेरे हस्बैंड पीडीटी में बॉम्ब डिस्पोजल में, तो कॉलिंग वगैरह पे भी रहते हैं, तो कॉलिंग आ जाती है तो इमरजेंसी में एकदम से जाना पड़ता है। तो एक्चुअली सर हम थोड़ा सा हैप्पीनेस वाला एनवायरनमेंट रखते हैं, तो हमें पता है बहुत स्ट्रेस में है, तो मैं कोई भी इशू आ जाए, चाहे फैमिली इशू है, कोई हेल्थ इशू है, तो मैं खुद ही हैंडल करती हूँ, खुद ही मैनेज करती हूँ। मैं सोचती हूँ कि उनको कन्वे ना करूँ, अगर सिचुएशन आउट ऑफ कंट्रोल ही चली जाए तभी मैं करती हूँ, अदरवाइज़ मैं सोचती हूँ वो स्ट्रेस फ्री रहे। पहले ही बहुत स्ट्रेस है तो और स्ट्रेस ना दूँ, इसलिए सर मैं थोड़ा हैप्पीनेस वाला, घर में भी आते हैं तो थोड़ा हैप्पीनेस वाला एनवायरनमेंट, और बच्चों को भी पता है पापा आए हैं, मूड भी ख़राब है, तो वो भी शांत रहते हैं कि हाँ पापा का मूड ख़राब है, थोड़ी देर थोड़ा चुप रहे, उसके बाद अपने आप भी ठीक हो जाएगा। तो बच्चे सब हम ऐसे, मूड ख़राब होने का रीज़न होता है काम, हाँ सर वो स्ट्रेस होता है, वहाँ कॉलिंग है, तो मुझे भी पता है सर वो पहले ही बहुत स्ट्रेस में है, तो हम स्ट्रेस देंगे तो फिर कैसे। और एक हमारा भी एक मॉरल ड्यूटी बनती है कि हम उनका साथ दें, हर उनके साथ देंगे तभी वो अच्छे से अपनी ड्यूटी कर पाएंगे। और हमारी भी ये ड्यूटी बनती है कि देश सेवा के लिए अगर वो इतना कुछ कर रहे हैं तो हमारा भी कुछ योगदान। क्या बात, बहुत ही, जब मैं आप लोगों से बात कर रहा हूँ तो ये सीरीज बहुत ही रिलेटेबल होगी आप लोगों के लिए, क्योंकि हमने स्पेशल सेल दिखाया है, बॉम्ब स्क्वाड है, IM इंडियन मुजाहिदीन से ही टैकल कर रहे हैं, तो ये सारी चीज़ें हैं। सो ऐसा मुझे फील हो रहा है कि बहुत रिलेटेबल लग रहा है। एक्चुअली सर ने कहा ना वो समझ जाते हैं फैमिली, तो फैमिली समझाना नहीं पड़ता, वो अपने आप ही समझ जाती है कि हाँ है उनके। अब हमारी डबल ड्यूटी बन जाती है सर, परिवार को भी देखना, उनको भी देखना, उनको भी टाइम टू टाइम अपडेट हो, मोटिवेट करना, तो ये हमारी अपनी खुद की भी ड्यूटी बन जाती है। मनप्रीत जी, आप पुलिस फैमिली वेलफेयर सोसाइटी से जुड़ी हुई हैं, इसके बेनिफिट्स आप बताएं प्लीज़। हाँ जी सर ऐसे है कि हमारे पुलिस फैमिली की तरफ से जो PFWS फैमिली है वो बहुत एक्टिविटीज़ करवाते हैं सर, और मैं मतलब कोशिश करती हूँ कि हर एक्टिविटी में मैं मतलब रहूँ, हर एक्टिविटी में मैं। और सर यहाँ पे जैसे सिलाई सिखाई जाती है, और एडवांस जूट के कोर्स करवाए जाते हैं, और सर इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स करवाया जाता है, और सर यहाँ पर ब्यूटिशियन का भी कोर्स करवाया जाता है, और सर यहाँ पे ड्राइविंग का, मतलब मैं उसके लिए स्पेशल थैंक्स देना चाहती हूँ कि यहाँ पे ड्राइविंग का कोर्स करवाया गया, क्योंकि पहले मैं मतलब अपने हस्बैंड पे डिपेंडेंट रहती थी कि वो आएंगे और मेरी हेल्प करेंगे, वो जाएंगे मार्केट सामान ला कर देंगे, तो अब मैं नहीं देखती, क्योंकि मुझे पता है ड्यूटी पहले है, और अगर उन पे बैठे रहूँगी तो काम तो गया, फिर तो बस बन गया खाना भी। और सब अब मैं मतलब खुद ड्राइव करके चली जाती हूँ, बच्चों को स्कूल ले जाती हूँ, स्कूल से लेकर आती हूँ, ट्यूशन भी लेकर जाती हूँ। और सर एक अभी जस्ट हमारे मालवीय नगर में स्मिता संस्था का मतलब स्थापना की गई है, जहाँ पर हमारे मतलब जैसे थोड़ा वीक बच्चों के लिए स्पेशल जो चाइल्ड होते हैं उनकी थेरेपी के लिए भी किया गया है, तो मैं उसका भी अपने पुलिस डिपार्टमेंट को बहुत बहुत थैंक यू बोलती हूँ कि उन्होंने हमारे लिए इतना सोचा। और जी सर बहुत बहुत शुक्रिया, और रितु जी के लिए जोरदार तालियां फॉर बीइंग द फ्रंट रनर फॉर दैट, सो थैंक यू। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। पर एक बात कहना चाहेंगे कि एक लफ्ज हमने जो बार बार सुना, एडजस्टमेंट, वो बहुत करनी पड़ती है सभी को, और उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू। आप भी हैं इंस्ट्रूमेंटल जिस वजह से हमारा देश और हम सब महफूज है, उसके लिए शुक्रिया, आप सभी का शुक्रिया। थैंक यू सो मच, थैंक यू। जोरदार तालियां। प्रीति जी सर, नाइस लाइन, नो गॉसिप टाइम। उन सब चीजों के लिए वक्त ही नहीं मिलता जब ड्यूटी पे जाना है, घर को भी संभालना है, ऑल ऑफ दैट। दे आर मल्टीटास्कर्स, एंड ऑल्सो नॉट जस्ट प्रीति जी, बट आई वुड से टू ऑल द women in the house, to all the ladies in the house, a salute to you and a cheer for all of you. Let's put our hands together for all the women in the house. Thank you for being the pillar of strength. Thank you. मंच तैयार है। इसी के साथ अब बारी है उन सभी ब्रेव हार्ट्स की बहादुरी को सलाम करने की, जिनकी वजह से हम हर रोज महफूज रहते हैं, सुरक्षित रहते हैं। एंड फॉर द सेम
I'll request Vivek, Shilpa, Siddharth and Rohit to please stay back on stage. Manpreet ji, thank you so much. It's a moment to capture. Neeraj ji, she believes in spreading happiness because she said she sees to it that she spreads happiness at home, she keeps the environment happy, and exactly that's what she's doing here as well. Thank you so much. Teamwork, teamwork. She does manage things well. Yeah, she does. Thank you, sir. Up to she's the force behind one of the Indian police force. So she's the happiness queen. She said that. So she likes to spread happiness with a smile. Thank you. Mic le lo. The student of the year is teaching it right. To do the honors, to felicitate and honor our real-life heroes, I would like to call on stage Srimati Ritu Arora ji, President, Police Families Welfare Society, Delhi. Also, Shri Sanjay Arora ji, IPS Commissioner of Police, Delhi. Request Sushant Sriram and Aparna Purohit to also join us on stage to do the honors. Chivalrous men do exist. Thank you. Thank you, Vivek. The first category is, now iske liye zordar taaliyan cheer for every awardee because they are the ones who deserve the accolades. The first category is Bahaduri Awards for officers who've displayed exemplary courage and fearless commitment to public safety. And the first honor goes to, please welcome Head Constable Ram Nivas and Constable Manoj on stage. बताना चाहूंगा कि द्वारका डिस्ट्रिक्ट के पालम गांव में एक घर में भीषण आग लगी थी। अपनी जान की बिना परवाह किए इन दोनों ने एक महिला और 2 बच्चों की जान बचाई। अब दोनों की वीरता को सलाम, बहुत बहुत शुक्रिया। Please welcome Head Constable Rakesh Kumar Meena on stage. सबको बताना चाहूंगा कि मंगलपुरी इलाके में 3 घरों में आग लगी थी जिसे कंट्रोल करना बहुत ही मुश्किल था। उस आग में कूदकर राकेश जी ने 16 लोगों को सुरक्षित तरीके से बाहर निकाला और उनकी जान बचाई। अगला ऑनर है
कीजिए ASI परमेंद्र। यमुना नदी के सिग्नेचर ब्रिज की ऊंचाई को तो हम सब ने देखा है। उस ब्रिज से एक टीनेज लड़की ने अपनी जान देने की कोशिश की थी। परमेंद्र जी ने बेझिझक उस ऊंचाई से कूदकर उस लड़की की जान बचाई। आपकी निडरता को सलाम। उस स्पॉन्टेनियस रिएक्शन को कूदने के लिए बहुत करेज लगता है, बहुत ही स्ट्रेंथ लगती है। उस स्ट्रेंथ के लिए जोरदार तालियां। Next honor goes to, please welcome Head Constable Sudhir Yadav, Constable Prince and Constable Devender. थोड़ी देर पहले फिल्मों की पुलिस के बारे में बात चल रही थी। फिल्मों में हमने देखा है कि कैसे पुलिस चोर का पीछा करती है, वो रियल लाइफ में भी होता है। सिर्फ हम वो पर्दे पे दिखाई देते हैं, रोज हमें दिखाई नहीं देता। वैसे ही एक इंसिडेंट में पेट्रोलिंग के दौरान इन्होंने एक बाइक को रोका और उन्हें शक था कि कुछ तो गड़बड़ है। उन्होंने रोकने की कोशिश की पर बाइकर भाग निकला। इन तीनों ने चेस किया और पकड़ लिया। और ना सिर्फ बाइक चोरी की थी उसने गोल्ड चेन्स और उससे स्कूटी भी बरामद की। सो थैंक यू। उन पुलिस ऑफिसर्स को ऑनर करने का जिन्होंने अपनी ड्यूटी के साथ साथ समाज के लिए अपना वक्त समर्पित किया है, कुछ खास किया है। उसके लिए मंच पर सबसे पहले स्वागत कीजिए हेड कांस्टेबल आशीष दाहिया। आशीष जी ने अब तक 115 बार रक्तदान किया है और न जाने कितने लोगों की जान बचाई है। है 131 बार रक्तदान किया है। जोरदार तालियां। इसी से हम सभी को प्रोत्साहन मिलता है क्योंकि हम 1-2 बार करने की सोचते हैं और वो भी सोच कर करते हैं। आपने 131 बार किया है, इसके लिए आपको सलाम एंड थैंक यू सो मच। थैंक यू। नेक्स्ट अप प्लीज वेलकम हेड कांस्टेबल संदीप शाही। इन्हें एक और नाम से नवाजा गया है, हेलमेट कॉप के नाम से। इन्होंने बाइकर्स की सुरक्षित राइडिंग के लिए खुद से 1100 हेलमेट्स डिस्ट्रीब्यूट किए हैं। अपनी खुद की पगार से 1100 हेलमेट्स डिस्ट्रीब्यूट किए ताकि बाइकर्स सुरक्षित रहे, सेफ राइडिंग करें। आपको सलाम सर। नेक्स्ट ऑनर गोज टू सीनियर इंस्पेक्टर राकेश कुमार। कोविड का वक्त, लॉकडाउन का वक्त हम सबके लिए काफी कठिन था, पर हम हमारे घरों में महफूज थे। इस दौरान राकेश जी ने 1200 डेड बॉडीज का अंतिम संस्कार करवाया। और एक और बात, इसी दौरान इन्होंने अपनी खुद की बेटी की शादी भी इस वजह से पोस्टपोन कर दी। आपके सैक्रिफाइस के लिए, आपके काम के लिए बहुत जोरदार तालियां और आपको सलाम। थैंक यू। नेक्स्ट ऑनर के लिए स्वागत कीजिए हेड कांस्टेबल अमित कुमार लाठिया। अपनी ड्यूटी के बाद वक्त निकालकर इन्होंने 200 गरीब बच्चों को पढ़ाया है, जिनमें से 120 बच्चों को सरकारी नौकरी हासिल हुई है।
अगले अवार्ड्स हैं उन अफसरों के लिए जिन्होंने देश की सेवा करते वक्त अपनी जान गंवाई। द फर्स्ट ऑनर गोज टू लेट ASI शंभू दयाल मीना। हम मंच पर बुलाना चाहेंगे उनके सुपुत्र सब इंस्पेक्टर दीपक। एक स्नैचर को, चेन स्नैचर को पकड़ते वक्त शंभू जी पर चाकू चलाया गया था, उन पर हमला हुआ, वो इंजर हुए, उसके बावजूद उन्होंने उसे पकड़ कर रखा और उसी इंजरीज की वजह से अपनी जान गंवाई। शंभू जी के सैक्रिफाइस को हम सलाम करते हैं। Next honor, the sacrifice goes to late Head Constable प्रदीप और हम मंच पर बुलाना चाहेंगे उनकी धर्मपत्नी श्रीमती मोनिका जी को। प्रदीप जी एक स्पेशल सेल में तैनात थे, इंटेलिजेंस गैदर करते थे। इन्हें क्रिमिनल्स को पकड़ते वक्त गोली लगने से इन्होंने अपनी जान गंवाई। प्रदीप जी की बहादुरी के लिए हम सैल्यूट करते हैं। And the next honor goes to late ASI ओम प्रकाश। मंच पर बुलाना चाहेंगे उनकी धर्मपत्नी श्रीमती रोशनी देवी जी को। ट्रैफिक रूल्स को इंप्लीमेंट करते वक्त ट्रिपल राइडर्स के शरारती तत्वों को रोकते हुए राइडर्स ने बाइक से इन्हें हिट किया और वे शहीद हुए। ओम प्रकाश जी आपकी वीरता को सलाम, बहुत बहुत शुक्रिया। सभी रियल लाइफ हीरोज के लिए जोरदार तालियां। For all the sacrifices they do, have done on a daily basis. With that, may I request Sushant, Aparna, Rohit sir, Siddharth, Shilpa and Vivek to present a token of gratitude to our guest of honors today. Srimati Ritu Arora ji, President, Police Families Welfare Society, Delhi, and Shri Sanjay Arora ji, IPS Commissioner of Police, Delhi. May I request volunteers to please. With the perfect weather, a little music in the air might just be the right combination for us to अब इन्हें सुनने के लिए हम बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। मैं रिक्वेस्ट कमिश्नर ऑफ पुलिस दिल्ली IPS संजय अरोड़ा जी टू प्लीज से अ फ्यू वर्ड्स।
इवनिंग एवरीवन। सबसे पहले तो आप सब लोगों को नए साल की बहुत बहुत शुभकामनाएं। I would like to start with saluting and recognizing the contribution of our 35,000 martyrs, जिनकी याद में ये मेमोरियल बना हुआ है। और साथ में ये भी बताना चाहूँगा कि हर साल ऑन एन एवरेज लगभग 400 से 500 पुलिस पर्सनल अल्टीमेट सैक्रिफाइस देते हैं देश की सेवा में, सोसाइटी की सेवा में। और जैसा रोहित जी ने बोला था, ये एक नंबर नहीं है, इनके पीछे चेहरे हैं, इनके पीछे फैमिलीज़ हैं। उनको भी पूरी ज़िंदगी भर उस पुलिसकर्मी के जाने के बाद इस सैक्रिफाइस का बोझ उठाना पड़ता है। वो खुद सैक्रिफाइस करते हैं। काफ़ी समय पहले मैंने एक चार्ली चैपलिन का कोट पढ़ा था। उन्होंने कहा कि ऑल आई नीड टू मेक ए कॉमेडी इज़ अ पार्क, अ पुलिसमैन एंड अ प्रिटी गर्ल। तो चार्ली चैपलिन भी पुलिसमैन के बिना काम नहीं कर पाए, उनको भी पुलिसमैन की ज़रूरत पड़ती थी अपनी कॉमेडीज़ बनाने के लिए। इंडियन मूवीज़ में, इंडियन सीरियल्स सब में हम लोग होते हैं, हीरो भी होते हैं, विलन बन के भी आते हैं और कॉमेडियन भी होते हैं, पर हमारे बिना काम नहीं होता है। ये मैं लाइटर वेन में कह रहा हूँ, लेकिन जो पुलिस की और पुलिस कर्मियों की जो ज़िंदगी है, जो काम है, उसका रियलिस्टिक डिपिक्शन बहुत कम होता है। आजकल पहले के मुकाबले बहुत ज़्यादा होने लगा है कि पुलिस की कितनी सक्सेस है, सोसाइटी के लिए क्या कंट्रीब्यूशन है, क्या फेलियर्स हैं, उनके मुसीबतें, दिक्कत, उनके डिलेमास क्या हैं, मानसिक दुविधाएं क्या हैं। तो आप सब लोगों को हमारी सबकी तरफ से बहुत बहुत कंग्रेचुलेशंस, बधाई कि आपने ये इनिशिएटिव लिया और इन सब चीज़ को दिखाने की एक बहुत अच्छी कोशिश की। जो ग्लिम्पसेस आपने दिखाया, वो बैठे बैठे हम सब लोगों को जोश आ गया। और मेरे जैसे जिनका कैरियर अब ख़त्म होने की कगार पे है, सालेक में है, हम लोगों को फिर से ये लगने लगा कि दोबारा ज्वाइन कर लेते हैं पुलिस फोर्स। Let me take liberty of calling you by first names. हम सब की तरफ से आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। रोहित को, शिल्पा को, सिद्धार्थ को, विवेक, अपर्णा, सुशांत, for grand success of Indian Police Force and all your future endeavors and projects that you undertake. My best wishes. Thank you very much. Thank you so much, sir, for being the true hero that you are. So thank you. Umaid, is it okay positioning or yeah? Okay. किसी के फोन में ले ले, मेहुल के फोन में ले ले। On a lighter note, I would like to say this is generally, you know, the police officers generally guide us and tell us, and nobody can say a thing. On this moment, it's only the photographers who are dictating their terms. पीछे देख रहे हैं। I'd also request senior functionaries from Police Families Welfare Society to please join us on stage. मेरी दरख्वास्त है पुलिस फैमिलीज वेलफेयर सोसाइटी के सीनियर फंक्शनरीज मंच पर आ जाएं। आप ही वो पिलर्स हैं जो इस सोसाइटी को, जो इस ग्रुप को साथ रखते हैं। उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया और आप सभी का स्वागत। I think हम सब साथ मिलके तालियां बजा सकते हैं for the senior functionaries of Police Families Welfare Society.
हम्बल रिक्वेस्ट कि आप सभी अपनी अपनी जगह पर बैठे रहें। Just quick check with Umaid and the team. Thank you. बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का। Request all of you to please take your seats. Please let them settle down. मेरी दरख्वास्त है कि उनको प्लीज सेटल होने दीजिए। फोन पर ध्यान रखना चाहिए ना। तो जैसा कि आपने देखा, ना केवल इन एक्टर्स ने अपने सीरीज़ के बारे में बताई, बल्कि हमारे देश के जो कुछ पुलिस ऑफिसर्स हैं उनके ब्रेवरी के लिए उनको सम्मानित भी किया गया। और आप सबको बता दूं कि आप ये सीरीज़ अमेज़ॉन प्राइम में जनवरी 19 से देख सकते हैं।